So welcome back to our YouTube channel Sai Academy, where we conduct classes for UGC NET Psychology for CUET PG as well as 11-12 boards. तो सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है साई एकेडमी, जहाँ पे हम क्लासेस कराते हैं फॉर UGC नेट साइकोलॉजी फॉर CUET PG as well as 11-12 boards. So in today's class we will talk about aggression. In the previous class we talked about pro-social behavior and now we will talk about aggression. So this would be the 8th part of our social psychology series. तो आज की क्लास में हम बात करेंगे अग्रेशन पे, और ये जो क्लास है ये हमारा 8वां क्लास होगा जो सोशल साइकोलॉजी का हमारा सीरीज़ है उसका. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट. So we will start with some very basic terms that we are going to use to understand today's topic. तो अभी हम सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स की बात करेंगे जिनको हम आगे क्लास में यूज़ करेंगे हमारे पूरे टॉपिक को समझने में, तो ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सो द फर्स्ट टॉपिक वुड बी anger. So in fact I would like to ask you a question. Let's say think about these 3 terms that I've mentioned here. So you might be aware that they are different terms, but how are they different? If you have to define them to somebody, can you define them? You can try to pause the video and try to define them individually, not in technical terms, but however you can. So we might think that we know how these are different, but do we really? Can we really define how they're different? So अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अगर 2 मिनट वीडियो पॉज करके एक बार सोच के देखें कि वैसे हमें आइडिया है कि ये 3 टर्म्स अलग हैं, कि एंगर, फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन सब अलग चीज़ें हैं, बट कैसे अलग है? क्या हम सोच सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे अलग हैं? So now we'll talk about what these terms actually are. I hope you tried the exercise that I just mentioned. So anger, when we talk about, anger is more of an emotion. This an emotion when that you feel when, let's say, कुछ गलत हो रहा है, आपको लगता है कुछ इनजस्टिस हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ या किसी और के साथ, या फिर मे बी आप कुछ करना चाहते हैं बट वो चीज़ नहीं हो पा रही है, आपसे नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में भी इस वजह से भी एंगर का जो इमोशन है वो आपको फील हो सकता है. So anger is something that it is an emotion which you feel when either, let's say, you feel like somebody is being wronged, somebody else is being wronged, or you are being wronged, something wrong is happening basically, or maybe you feel like there is something that you want to do but you're not able to achieve it. So in such situations we feel anger. There are many other, but these are important situations. Now frustration, when we talk about, so it can be for anything, maybe something wrong that is happening, or maybe we'll study about this later on. So not able to, or we'll simply write the word frustration. Sorry for this. Yeah. So these things can lead to anger. So we'll talk about here what frustration is. Now frustration is more of a state of being, a certain state that you are in, but it is also an emotion. So we'll call it an emotion because frustration is also somewhat in some aspects it is also an emotion. So frustration is an emotion. Now here comes the important point, that frustration is something you feel. It is a state that you experience when you are not able to achieve what you want to. Let's say there is a problem, there is a puzzle that you're trying to solve but you're not able to. So in such a situation, you want to do something, you want to achieve a goal but you're not able to do that for whatever reason. That is when you feel frustration. So this happens when you are unable to achieve some goal of yours. तो फ्रस्ट्रेशन को हम एक स्टेट ऐसा बोलेंगे, एक ऐसा स्टेट बोलेंगे, या फिर हम उसको एक इमोशन भी बोल सकते हैं. उसको समझने के लिए हम उसको इमोशन ही बोलेंगे, लेकिन जो एक डिफरेंस है एंगर और फ्रस्ट्रेशन में, कि फ्रस्ट्रेशन में आपको फ्रस्ट्रेशन तब फील होती है यूजुअली
जब आपको एक गोल अचीव करना है, आपको कुछ करना है, मे बी एक पजल है जो आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं बट आप वो नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में, या फिर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं किसी सिचुएशन में बट आप नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको फ्रस्ट्रेशन फील होता है. सो दिस इज़ फ्रस्ट्रेशन. नाउ एंगर includes frustration, or rather I would say that frustration can lead to anger. Frustration is something that can lead to many different types of emotional responses, one of which is anger. But yeah, so that is frustration, and anger is something you feel for maybe something wrong, as I said, something wrong that is happening, or maybe when you are experiencing frustration for some reason, that for some goal that you're not able to achieve. So these are related terms, I will not deny, but these are different. So now aggression, if we talk about, aggression is more of a behavior or an action that is intended to harm someone or to cause someone pain. So it is a hostile, this is an important term, this is usually a hostile kind of behavior or action that is intended to cause harm to someone. Now this kind of behavior, it can be physical, it can be verbal, or it can be emotional. Well, there are different kinds of aggressions, we will talk about that later, but when we talk about aggression, they are basically behaviors, hostile behaviors usually, or actions that are intended to harm a particular individual. So this is what aggression is. So let's take some examples. For example, let's say you are riding your vehicle, be it a bike or a car, and so you're riding a car or a scooty or a bike, let's say, and somebody overtakes you, which is pretty common here in India. So somebody overtakes you, and that is when you feel anger. So you have been wronged, that is when you feel anger. Now frustration is when let's say you, as I said, you are trying to solve a puzzle, or you are trying to solve a problem of yours, but you're not able to reach to the goal that you intend to. So that is when you feel frustration. If you take a definite example, let's say you want to be something, let's say you want to be a teacher, or you want to be a doctor in the future, but then for some reason, for whatever reasons, for maybe family, some commitments that you have, or some other reasons, you are not able to reach your goal. So that is when you will feel frustration. Now aggression is when so again I'll explain. तो एंगर में आपका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि आप गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटी या बाइक चला रहे हैं, या फिर कार चला रहे हैं, और कोई आपको ओवरटेक करके चला जाता है, जो कि हम देखते हैं इंडिया में काफ़ी, तो तब आपको फील हो सकता है एंगर, और क्योंकि आपके साथ कुछ गलत हुआ. नाउ फ्रस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर कुछ भी, आप एक सर्टेन प्रोफेशन को, आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, बट फैमिली प्रेशर की वजह से या फिर कुछ कमिटमेंट्स की वजह से आप वो गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको फ्रस्ट्रेशन फील होगा. नाउ अग्रेशन में, जैसे हमने बोला, वो एक ऐसा बिहेवियर है या एक्शन है जिसमें आपका इंटेंशन ही होता है सामने वाले को दुख पहुंचाना, उनको हार्म करना, और जो कि फिजिकल, वर्बल, कुछ भी हो सकता है. तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई आपको ओवरटेक कर रहा है, और फिर आप वहीं पे अपनी गाड़ी रोक के, या फिर आप उसको चेस करते हो, और फिर लास्ट में आप उनको मारते पीटते हो या फिर गाली देते हो. तो फिर these are examples. So when you are being overtaken, for example, somebody overtakes you basically on the road, and then you either chase them or you stop them right there, and then you maybe hit them or curse them. So verbal or physical aggression is what you show in this situation. So these are examples which I gave to help you try to understand these concepts. इसके बाद we will talk about the different types of aggression. Now we will talk about some common types of aggression. अब हम बात करेंगे कुछ common types aggression के, कि किन किन टाइप के aggressions यूजुअली हम लोग नोटिस करते हैं, देखते हैं. तो हमारा सबसे पहला हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी मेंशन किया, फिजिकल
aggression. So as the name suggests, physical aggression is when you use force, when you use your hands, legs, everything to actually hit the person. And one important point, well, we will discuss that later. So this is important. This is what physical aggression is, where you use your hands, feet and everything, like you physically are harming the person. So you are using force, using your hands, legs, everything. So that is our physical aggression. Then we have our verbal aggression. Verbal aggression में you abuse the person verbally, that is for example you are cursing that person, you are belittling that person. So that is our verbal aggression. So using words to harm that person. तो जो फिज़िकल अग्रेशन है उसमें आप हाथ पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे मारपीट कर रहे हैं. सो दैट इज़ फिज़िकल अग्रेशन ये हो गया हमारा. और वर्बल अग्रेशन में आप मे भी उनको गाली दे रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं. सो दैट इज़ वर्बल अग्रेशन. बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि फिज़िकल अग्रेशन में यू सी इंजरीज, you see physical injuries, and so physical injuries will write. And in verbal aggression there is usually a lasting emotional damage. सो फिज़िकल एग्रेशन में के बाद यूजुअली आपको दिखेगा कि किसी का कट गया है, छिल गया है, कुछ चोटें हैं, वो सब दिखती है फिज़िकल एग्रेशन में. बट जो वर्बल एग्रेशन है उसमें आपको यूजुअली फ़िज़िकल कुछ नहीं दिखेगा यूजुअली. बट आपको एक आप उस इंसान पर जिस पे फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं एग्रेशन, वर्बल एग्रेशन, उस पर एक बहुत एक लास्टिंग, एक बहुत टाइम के लिए आप उस पर उनका इमोशन जो है, इमोशनल डैमेज आप कर रहे हैं. तो वो इमोशनली हर्ट बहुत टाइम तक रहेंगे, उनको उससे उभरने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप उन्हें ना सिर्फ कभी कभी कर्स कर रहे हैं बट किन सिचुएशंस में सिर्फ कर्स नहीं कर रहे हैं, आप उनको नीचा भी दिखा रहे हैं. तो वर्बल अग्रेशन हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि मे बी कुछ पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट है लेट्स से जो खुद अपने वर्क प्लेस से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और वो अपना फ्रस्ट्रेशन अपने घर पे आके बच्चों को अब्यूज़ करता है, वर्बली अग्रेशन दिखाता है, उनको नीचा दिखाता है अपने बच्चों को. तो वो एक जो वो बच्चे बड़े होंगे तो उन पे वो उनका जो इमोशन है वो इमोशनली डैमेज हो चुके हैं, हर्ट हैं वो लोग, जो बचपन में जिनको हर्ट किया गया है वो बड़े होने तक उनके साथ रहेगा और उनके आगे के रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. वो जो डैमेज हो चुका है वो हील होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है बड़े होने के बाद. सो दैट वुड बी वर्बल अग्रेशन. और फिजिकल में लेट्स से कि जब वायलेंस होता है, जब मारपीट होती है, लेट्स से डोमेस्टिक वायलेंस में ही हस्बैंड वाइफ को फॉर एग्जांपल मारता है, तो दैट वुड बी वर्बल अग्रेशन. नाउ द थर्ड काइंड वुड बी relational aggression. तो relational aggression में your focus is more on harming the individual's social connections. So relational aggression में जो focus होता है वो होता है to harm the individual's social connections. और ये काफ़ी टाइप से हम देख सकते हैं. एग्जाम्पल हो जाएगा गॉसिप करना, या फिर मे बी आप किसी को एक्सक्लूड कर दे रहे हो किसी ग्रुप से, मे बी आप ऑलरेडी ग्रुप का पार्ट हो और उसमें से एक इंसान ने कुछ ऐसा किया जो आपको पसंद नहीं आया था, कभी आपका उसके साथ झगड़ा हो गया, तो बाद में फिर आप पूरे ग्रुप को उनके अगेंस्ट करने की कोशिश करते हो. आप कोशिश करते हो कि सब लोग भी उनको एक्सक्लूड कर दें ग्रुप से. तो या फिर आप गॉसिप करते हो लोगों के बारे में. आई होप आप नहीं करते हो, बट सो दैट इज़ देयर. रिलेशनल अग्रेशन इज़ मोर अबाउट हार्मिंग सोशल कनेक्शंस, कि जो इंसान के आसपास जो उनका रेपुटेशन है उसको हार्म करने की, जो कनेक्शंस है, जो रिलेशनशिप्स है लोगों के साथ, उसको हार्म करने की कोशिश की जाती है रिलेशनल अग्रेशन में. नाउ अब ये फोर्थ और फिफ्थ कॉन्सेप्ट हम साथ में पढ़ेंगे और ये कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं. तो हमारा हो जाएगा इम्पल्सिव वर्सेस इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन. तो ये हमारा फोर्थ
एंड फिफ्थ टाइप का अग्रेशन हुआ इम्पल्सिव, ऐसे ना लिख के हम लोग अलग अलग कर देते हैं। फोर्थ हमारा इम्पल्सिव है और फिफ्थ हो गया इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। तो इम्पल्सिव और इसमें एक और रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो हम इनको साथ ही में लिख देंगे, फिर हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या होते हैं। सॉरी, हाँ, रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव अग्रेशन। ठीक है, तो इनकेस आपको समझने में दिक्कत हो रही है, देखिए तो हमने पहला लिया इम्पल्सिव वर्सेस इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन अग्रेशन, तो हमारा फोर्थ टाइप हुआ इम्पल्सिव, फिफ्थ हुआ इंस्ट्रूमेंटल, और हमारा सिक्स टाइप हुआ रिएक्टिव, सेवेंथ है प्रोएक्टिव। तो इनको हम ऑपोजिट, क्योंकि ये लोग ऑपोजिट है ये कॉन्सेप्ट, इसीलिए इनको ऑपोजिट वर्सेस करके पढ़ने में ज़्यादा ईजी होता है। ऑल्सो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं दे आर मोर और लेस द सेम, again not exactly the same, we'll read about it but study about it, but they are related, they are more or less the same. Now impulsive जो हम aggression देखते हैं, it is usually unplanned, or we could say it is more about heat of the moment kind of a phenomena. ना इम्पल्सिव में हम क्या देखते हैं, इम्पल्सिव या रिएक्टिव में कि कभी कुछ एक ऐसा सिचुएशन हुआ जिसमें आप अपने एंगर को नहीं कंट्रोल कर पाए, अपने फ्रस्ट्रेशन को नहीं कंट्रोल कर पाए, खुद को नहीं कंट्रोल कर पाए, एंड दैट लेड टू सम सॉर्ट ऑफ अग्रेशन। तो कुछ एक इंसिडेंट होता है, उसके रिएक्शन में, जैसे कि लिखा है रिएक्टिव, उसके रिएक्शन में आपने, और इम्पल्सिव यानी कि आपने अपने इम्पल्स को आप कंट्रोल नहीं कर पाए और इनवॉलंटरी आपने अग्रेशन दिखा दिया। तो नाउ अब हम बात करें अगर इंस्ट्रूमेंटल और प्रोएक्टिव अग्रेशन की, तो प्रोएक्टिव या इंस्ट्रूमेंटल में आपका एक सर्टेन गोल होता है, आप प्लान करते हो कि ऐसे ऐसे हम अग्रेशन करेंगे और इस वजह से करेंगे। तो आपके पास एक गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए ही आप अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट करते हो, प्लान करते हो, ताकि आप अपने गोल तक पहुंच पाओ। तो ये जो अग्रेशन होता है इंस्ट्रूमेंटल या प्रोएक्टिव, ये प्लान्ड होता है बेसिकली, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि प्लान्ड होता है, डेलिब्रेट होता है। सो इट डजंट जस्ट हैपन इन द स्पर ऑफ द मोमेंट। प्रोएक्टिव और इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन हैपन्स because you have planned it and because you want to achieve something, versus impulsive or reactive which happens as I said in the heat of the moment. So you don't plan it, you something happens that involuntarily leads you to showing some sort of aggression. So हमारा जो proactive है वो planned होता है and it is to achieve a goal. तो एक गोल को आप माइंड में लेके चलते हो और उसी के लिए, उसी की वजह से फिर आप अग्रेशन दिखाते हो, एक सम सॉर्ट ऑफ अग्रेशन यू शो। नाउ वैसे आप बोलेंगे कि ये दोनों सेम है तो अलग अलग क्यों इनको लिखा जा रहा है, तो मोर और लेस दे आर सेम, दैट इज़ ट्रू, बट द थिंग इज व्हेन वी टॉक अबाउट इम्पल्सिव वर्सेस इंस्ट्रूमेंटल, तो उसमें द फोकस इज मोर ऑन व्हाई यू आर शोइंग अग्रेशन, कि इम्पल्सिव में मे बी कुछ एक इवेंट हुआ और इसलिए आपने एक एक्ट ऑफ अग्रेशन दिखाया, और इंस्ट्रूमेंटल भी वैसा ही है कि आपने क्यों किया, एक अग्रेशन क्यों दिखाया, बिकॉज आपका कुछ गोल था, आपने उस गोल को अचीव करने के लिए किया। वर्सेस रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ मोर अबाउट द टाइम, कि रिएक्टिव की जब कुछ एक इवेंट हुआ उसके तुरंत बाद इनवॉलंटरीली तुरंत बाद आपने एक एक्ट ऑफ अग्रेशन दिखाया। प्रोएक्टिव में लेकिन आपने प्रॉपर प्लान किया और तुरंत नहीं, बट काफ़ी टाइम बाद या एक ड्यूरेशन लेके आप चल रहे हैं, एक पूरा प्लान लेके आप चल रहे हैं और फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो इट्स नॉट हैपनिंग राइट अवे। सो दैट इज़ यू कुड से subtle kind of difference between these, but mainly these are more or less the same thing. So this is about the different types of aggression. Now we will move on to some important theories of aggression. So now we will talk about some important theories of aggression, and the first one is our frustration aggression hypothesis. तो इसमें जो इसको सबसे पहले जिसने दिया था वो थे हमारे जॉन डॉलर
जिन्होंने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1939 में इस थ्योरी को, रादर हाइपोथीसिस, क्योंकि ये एज अ थ्योरी प्रॉपर इस्टेब्लिश नहीं हो पाया था, तो इसको, इस हाइपोथीसिस को जॉन डॉलर ने 1939 में दिया था. So the very first theory that, or other hypothesis that we are going to talk about today is the frustration aggression hypothesis, which was given by John Dollar in, I assume it's around 1939 only. Okay, so the main point of this theory is, in fact the main points we would say, the first one is that frustration always leads to aggression. So this is the first point that was given. We'll write the second point and then we will try to understand them. So the second point of the second hypothesis that was given was that aggression is always caused by frustration. Now these two points might seem very similar, but let's try to understand them. So the first point says that frustration always leads to aggression, where Dollard wanted to say that whenever you feel frustrated, always it will, that feeling of frustration, that will always lead to some act of aggression, be it physical, verbal or emotional, whatever, but that feeling of frustration will always lead to aggression. Now this was pretty easy to understand. The second point says that aggression is always caused by frustration. So what Dollard meant by this point is that the cause of aggression will always be frustration, and it could not be anything else. That only frustration could lead to aggression. He did not consider any other factors that could also, contribute to aggression. So जो ये दो points हैं, इसमें डॉलर ने पहले point में बोला है कि जब भी आप frustrated feel करेंगे, आप definitely उसके बाद आप aggression show करेंगे ही. तो ये हमारा पहला पॉइंट है जिसमें डॉलर ने बोला कि आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, यानी आप अग्रेशन शो करेंगे ही. फ्रस्ट्रेशन से अग्रेशन होना ही है, ऐसा डॉलर का कहना था फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट हाइपोथीसिस में. और सेकंड में उनका मानना था, सेकंड जो हाइपोथीसिस है उनका ये था कि जो अग्रेशन होता है वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन से ही होगा, फ्रस्ट्रेशन की ही वजह से कॉज होता है. कोई और फैक्टर, कोई भी सिचुएशनल फैक्टर या किसी भी चीज़ को उन्होंने कंसिडर नहीं किया है जिसकी वजह से भी अग्रेशन कॉज हो सकता है. अकॉर्डिंग टू हिम ओनली फ्रस्ट्रेशन कैन कॉज अग्रेशन, नथिंग एल्स. तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों हाइपोथीसिस हमारा डॉलर्ड एंड मिलर ने, डॉलर्ड ने, मिलर ने भी इनफैक्ट और भी कोलीग्स से उन्होंने ये हाइपोथीसिस दिया था. अब हम we'll move on to the second, in fact we'll study how this hypothesis was corrected, was revised by Berkowitz. Now we will discuss how this hypothesis was revised by Leonard Berkowitz, and around, so in the 1960s we will say this hypothesis was revised by Leonard Berkowitz. तो जो फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन का हाइपोथीसिस है उसको रिवाइज किया गया था अराउंड इन द 1960s बाय लियोनार्ड बर्कोविट्ज. उन्होंने इसको रिवाइज किया था. अब कैसे रिवाइज किया था वो हम देखेंगे. अब जो पॉइंट्स वहाँ पे दिए थे वही सिमिलर, उन्हीं को उन्होंने रिवाइज किया. तो उन्होंने कहा कि फ्रस्ट्रेशन doesn't always lead to aggression. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है. और सेकंड उन्होंने कहा कि aggression can also be caused by other factors.
तो बेसिकली उन्हीं हाइपोथेसिस, उन्हीं पॉइंट्स को उन्होंने चेंज किया। सो उन्होंने क्या कहा कि सो बर्कोविच ने कहा कि एक तो जो फ्रस्ट्रेशन है, हमेशा फ्रस्ट्रेशन विल नॉट लीड टू अग्रेशन बिकॉज देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो इन्वॉल्व फॉर अग्रेशन टू हैपन। तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमेशा अग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि और भी कुछ रीजन्स है, फैक्टर्स है जिनकी वजह से अग्रेशन कॉज होता है। नाउ उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए इनफैक्ट उन्होंने कहा कि अग्रेशन सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की वजह से नहीं होगा, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन में भी, फ्रस्ट्रेशन के साथ कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स हैं, कुछ में भी आप आसपास देखते हो कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी ऐसे हैं कि एक बहुत माहौल ही ऐसा बन चुका है आपके आसपास में भी, वहाँ पे सब ऐसे अग्रेसिव नेचर के हैं। तो ये सब रीजंस की वजह से भी डिसाइड होता है वेदर आप अग्रेशन दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन इनफ नहीं है, बिसाइड्स हो सकता है कि आप डरे हुए हो, आप गुस्से में हो, अब डरे हुए हो, गुस्से में हो, एंशियस हो, स्ट्रेसफुल हो, तो इन रीजंस की वजह से भी आप अग्रेशन दिखा सकते हैं। इट डज नॉट ऑलवेज नेसेसरली हैव टू बी फ्रस्ट्रेशन, नॉट जस्ट फ्रस्ट्रेशन, इट कुड बी अदर थिंग्स एज वेल। तो ये चीज़ बोली थी बर्कोविच ने। तो दिस इज द सेकेंड थ्योरी, और अदर द रिवाइज वर्जन ऑफ डॉलर्स एंड मिलर्स थ्योरी। नाउ वी विल स्टडी द एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी। Now we will talk about the third theory, that is the excitation transfer theory, which was given by Dolph Zillman in around the year 1960s. So Dolph Zillman जो है उन्होंने 1970s में एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी दिया, विच इज़ रिलेटेड टू द फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस। बट यहाँ पे जो फोकस है, जो एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी है, इसमें जो फोकस था जिलमैन का, ये इट वाज मोर ऑन अराउजल, ऑन इमोशनल अराउजल। तो इसमें जो फोकस था, जैसा कि हमने बोला, वो इमोशनल अराउजल पे था। और इसमें इस थ्योरी में बोला गया कि जब आपके साथ कोई इवेंट हो रहा है और उसका जो इमोशनल अराउजल आप फील कर रहे हैं ड्यू टू सम इवेंट, दैट इज़ यूजुअली मिस एट्रीब्यूटेड। जब भी आप कुछ इंटेंस इमोशंस आप फील करते हैं फॉर सम इवेंट, तो उसका जो इमोशनल अराउजल है, जो भी आप इमोशंस फील कर रहे हैं, इंटेंस इमोशंस, वो आप मिस एट्रीब्यूट कर देते हो, आप उसको किसी और मिस एट्रीब्यूट करते हो किसी और इवेंट से जो कि उससे रिलेटेड नहीं है, जो कि आपका रियल रीज़न नहीं है आपके फ्रस्ट्रेट होने का या आपके अग्रेशन में भी इन द एंड दिखाने का। सो हियर इन दिस थ्योरी, इन द एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी, व्हाट हैपेंस इज दैट वी we'll understand this through the different stages or processes that one goes through this entire theory. To understand it, we'll study the different stages it goes through, but what it really focuses on is how we sometimes might misattribute some intense emotion, some emotional arousal due to one event. So we misattribute those intense emotions to some other unrelated event. So we'll understand this. So the first stage, now this entire stage or process, whatever you want to call it, it was asked in a PYQ. So we will take that PYQ and accordingly form the stages. So ये जो stages हम पढ़ रहे हैं, जो process या stage जो भी आप बोले, ये एक PYQ है, उसमें से उसके थ्रू ही हम उसको लेके चल रहे हैं। Now the first thing is some arousing event that occurs. हम समझेंगे इसको और अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू. वी विल अंडरस्टैंड दिस बेटर थ्रू एन एग्जाम्पल, बट फॉर नाउ लेट्स सी व्हाट द स्टेजेस आर. So some arousing event happens and then there is heightened arousal. So due to some event there is high level of arousal or some intense emotions you are feeling. Then as time passes
द इंटेंसिटी ऑफ द इमोशन, द अराउजल, इट रिड्यूसेस बट इट स्टिल रिमेन्स। तो जैसे टाइम जाता है आपके जो हाइटेंड इमोशंस हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, बट वो स्टिल वो जाते नहीं हैं कम्प्लीटली। फिर बहुत ही मे बी कुछ माइनर सा फ्रस्ट्रेशन या फिर कुछ वही लिख देंगे हम, माइनर फ्रस्ट्रेशन अगर होता है, कुछ बहुत माइनर से इवेंट अगर होता है जो बहुत प्लेजेंट नहीं है मे बी, एंड दैट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। नाउ दिस व्हेन वी टॉक अबाउट द PYQ में ये वाला स्टेप मेंशन नहीं था, उसमें रेसिडुअल अराउजल के बाद डायरेक्टली दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ फ्रस्ट्रेशन अकर्स, बट हम समझने के लिए हमने एक ले लिया माइनर फ्रस्ट्रेशन। उसके बाद नाउ दिस कुड लीड टू अग्रेशन और कुड नॉट लीड टू, माइट नॉट लीड टू अग्रेशन। तो अग्रेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अराउजल है, it is attributed to the frustration, or you can call it the minor frustration, or it could be some unrelated event as well, so which could lead to aggression। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे, लेकिन these are the basic steps दैट कम अंडर हिज थ्योरी। तो अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने बोला, सबसे पहले एक अराउजिंग इवेंट होता है जिससे आपका बेसिकली दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। आपको बहुत चिढ़ मचती है और वो चीज़ आपके दिमाग पे रह जाती है। तो जब इंस्टेंटली जब वो इवेंट अगर हो चुका है, उसके बाद आपका जो अराउजल है वो बढ़ जाता है, आपको इंटेंस इमोशंस फील होते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम जाता है तो आपका जो गुस्सा है, आपका जो इमोशंस हैं वो धीरे धीरे सबसाइड होते हैं, जो इंटेंसिटी है इमोशंस की वो धीरे धीरे कम हो जाती है। उसके बाद लेकिन वो फिर भी रहती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फाइनली एक बहुत माइनर सा फ्रस्ट्रेशन अकर होता है, बहुत माइनर सा एक इवेंट होता है जो सम अदर सिचुएशन, सम अदर सिनेरियो जब आपके साथ एक अराउजिंग इवेंट ऑलरेडी ना अकर हुआ हो, ऐसे केस में आपके लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बट क्योंकि आप अभी आपके साथ एक बहुत ही इंटेंस एक कुछ घटना हुई है, तो आपका जो रेसिडुअल अराउजल है उसके बाद एक माइनर से फ्रस्ट्रेशन होने की वजह से दिस कुड लीड टू फ्रस्ट्रेशन। नाउ ये पार्ट जो है ये PYQ में भी आया था, में ही आया था इनफैक्ट। तो जब आपको फ्रस्ट्रेशन फील होता है तो आप फिर क्या करते हो, आपके फ्रस्ट्रेशन को आपके अराउजल को आप एट्रीब्यूट कर देते हो इस माइनर फ्रस्ट्रेशन को। तो जो PYQ था उसमें सिर्फ फ्रस्ट्रेशन लिखा था, माइनर फ्रस्ट्रेशन नहीं था। बट हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें लगता है हम क्यों हुए हैं फ्रस्ट्रेट, क्योंकि हमारे साथ एक छोटी सी कोई घटना हो गई है, इसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। बट जो एक्चुअल रीज़न है, जो हम यहाँ पे देखते हैं, जो हम पहले बोल रहे थे, what we see here is misattribution. So this is what we see here. We see that some minor event that happened, we are misattributing our arousal that happened because of this arousing event. We are misattributing this arousal to this minor frustration. तो हमें लगता है that the arousal is attributed to the minor frustration, जबकि एक्चुअल में जो वो फ्रस्ट्रेशन है वो आपका मेनली उस अराउजिंग इवेंट से आ रहा है। तो अब हम एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं ताकि इसको हम और अच्छे से समझ पाएँ। लेट्स से देयर इज़ अ गर्ल नेम्ड सारा। तो सारा को ऑफिस जाना था और उनको उठने में लेट्स से 15 मिनट लेट हो गया। तब उनका पूरा शेड्यूल बिगड़ चुका है, वो लेट हो चुकी हैं और उनको अपने घर से निकलने में 15 मिनट लेट हो गया, मोर और लेस 15 मिनट्स ही। और फिर उनकी एक बस भी छूट गई, ठीक है। तो अब उनको और लेट हो रहा है, तो मे बी अब 25 मिनट्स उनको लेट हो चुका है ऑलरेडी। तो हमारा अराउजिंग इवेंट है बेसिकली, या फिर हम एक ही लेके चलते हैं कि उन्हें उठने में लेट हो गया।
तो इसलिए वो 15 मिनट्स या 20 मिनट्स लेट चल रही हैं। तो उसका उनको डर है कि अब लेट होगा, बॉस क्या बोलेंगे, और फिर उनको पंच इन भी करना है, और फिर तो जो वो फियर है, जो स्ट्रेस है, वो उनके मन में अभी एक हाइटेंड इमोशन है। सो द अराउजिंग इवेंट इज़ वेकिंग अप लेट, गेटिंग लेट, and the heightened arousal is now that she is scared, she is stressed out, so this is the heightened emotion that she is feeling right now. पर धीरे फिर वो वेट करती हैं बस का, और उनको एक बस मिलता है फाइनली। तो अब जैसे वो बस में ट्रैवल कर रही होती है, तो धीरे धीरे उनका जो अराउजल है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन इट इज़ स्टिल देयर। तो अब उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, फियर है, वो अभी कम है, फ्रस्ट्रेशन अभी नहीं बोलेंगे, तो उनके जो हाइटेंड इमोशंस है वो अभी धीरे धीरे कम हो चुके हैं, बट वो फिर भी अभी मौजूद हैं। तो जब वो फिर फाइनली अपने ऑफिस पहुंचती हैं, फिर उनको अंदर घुसते ही उनके जो बॉस हैं, जैसे ही वो अंदर जाते हैं वैसे ही उनकी बॉस उनको बुलाते हैं, उनको ब्लेम करते हैं कि आपने ये काम गलत किया, और या फिर सिंपली वो उनको बोलते हैं कि आपने इस काम में गलत किया है, कुछ गलती उनकी निकाली जाती है। मे बी उनको चिल्लाते नहीं, कुछ नहीं, बट दे जस्ट कॉल हर एंड देन ही टेल्स सारा कि आपने ये गलत किया है, तो उसको सुधार लीजिए। तो ये एक बहुत माइनर सा फ्रस्ट्रेशन था जिसमें आपको बॉस डांट नहीं रहे हैं, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है, आई एम सॉरी। तो आपको डांटा नहीं जा रहा है, आपको बस बुलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये गलत आपसे हो गया है। तो अब उस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन आपको अब फ्रस्ट्रेशन फील होगा, दैट इज़ द पॉइंट। तो आप ऑलरेडी लेट हो गए थे, अराउजिंग इवेंट है हमारा कि आप लेट हुए, आप पहले बहुत डरे हुए थे, स्ट्रेस्ड आउट थे, फिर धीरे धीरे जैसे आप ट्रैवल करते गए और टाइम बीतता गया, आपका अराउजल कम हुआ, बट फिर भी वो था। उसके बाद फिर आपके बॉस ने आपको बुलाया, सारा के बॉस ने उसको बुलाया और उनको बस बोला कि आपने ये मिस्टेक किया है, आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो उसके बाद उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया, तो इनफैक्ट फ्रस्ट्रेशन एक्चुअली शो हुआ। तो अब जो सारा है उसको लगता है कि जो वो फ्रस्ट्रेट हो गई, मे बी वो अग्रेशन दिखाए ना दिखाए, बट उसका जो फ्रस्ट्रेशन है उसका वो रीज़न देगी क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और मेरे काम में गलती निकाली, इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, इसीलिए मुझे फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है। बट द एक्चुअल रीज़न फॉर दैट वुड बी द अराउजिंग इवेंट। सो इन दिस एग्जाम्पल दैट वी टुक, वी सेड दैट लेट्स से सारा वॉज ऑलरेडी लेट फॉर हर ऑफिस, let's say she was 15 minutes late, and then her emotions at this point, because she's very late, she's scared, she's stressed out, so we see a heightened arousal, heightened emotions, intense emotions. But then as she she finally finds a bus, and while she's traveling in the bus, her emotions they reduce, they subside, or I would say they reduce in intensity, but it's still there. Now she travels and then she finally reaches her office, and then right after she reaches the office, her boss calls her in his cabin, and then he tells her that there is this mistake that you committed, so please correct this. So he was not rude about it, he did not scold her or anything, but this led Sarah to get frustrated. So अब सारा को लग रहा है, now Sarah feels that the reason for her getting frustrated is because her boss was pointing out her mistakes. But what the actual reason might have been is that is the arousing event, that is she got late, that she woke up late. So after she got frustrated, she would attribute it to the minor frustration, that is her boss calling her to a cabin, but the actual reason is the arousing event. So this is important, this is the question that also comes in exams, that what was the actual reason, or what is assumed as to be the reason, which is attributed to be the reason, and what is the actual reason for getting frustrated. And now this frustration, it might lead to aggression or might not lead to aggression, but this is the entire process that tells about Dolph Zillman's theory of excitation transfer. Now again, also this aggression, the showing of aggression could depend on many factors, but here the important point is what actually, as I said, is attributed as the reason. Okay, तो यहाँ पे जो सबसे important point है कि क्या attribute किया गया, मिस attribution एक बहुत important point है, कि जो फ्रस्ट्रेशन हुआ हमें लगता है कि माइनर इवेंट की वजह से हुआ, बट एक्चुअली जो रीज़न है वो है हमारा अराउजिंग इवेंट। तो सो दिस वुड बी ऑल फॉर आवर टुडेज़ क्लास।
on aggression. So this is it for aggression. Now we'll end the class here. We will discuss the PYQs. We will solve the PYQs through the YouTube polls. We will put that up very soon. So thank you so much for joining with us today. I hope you understood everything. तो आई होप आपको समझ आया आज का टॉपिक. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. I would also like to say that please do remember to like, share and subscribe. Please हमारे चैनल को like, share और subscribe करें. I hope that you understood today's topic. तो अग्रेशन के लिए अभी इतना ही था. वी विल कंटिन्यू विद द सीरीज. इज़ ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. और जो PYQs हैं उनको हम यूट्यूब पोल्स पे बहुत जल्दी डाल देंगे, तो वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.